محمد امتیاز غلامی معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا ایک بریلوی شاعر کے کلام کا جواب دیتے ہوئے، جس میں بریلوی شاعر نے اپنے کلام میں نجدی حکومت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ائمہ حرمین شریفین یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف کے اماموں کو گستاخ بدعقیدہ کہا تھا، ساتھ ہی دعا مانگی تھی بریلوی امام بننے کی خانہ کعبہ میں۔ اگرچہ بریلوی کا استعمال نہیں کیا، سنی کا استعمال کیا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بریلوی جب بھی سنی بولتے ہیں تو اس سے مراد ان کے عقیدے کے مطابق بریلوی رضاخانی ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے بریلوی کے لفظ استعمال کیا۔ ہم نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ائمہ حرمین شریفین کو گستاخ کرنے والے خود ایک نمبر کے گستاخ ہیں۔ ان کی گستاخیوں کی نحوست ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی امامت تو دور کی بات ہے، انہیں مقتدی بنانا بھی پسند نہیں کیا۔ دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز غلامی، آپ کی یہ بات اس وقت درست ہوتی جب ہم سنی امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے اور ہمیں پڑھنے نہیں دیا جاتا، مگر یہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے، ہم خود نہیں پڑھتے ہیں جیسا کہ دنیا جانتی ہے، لہٰذا اس طرح کی جہالت دکھا کر اپنے چیلے چانٹوں اور اپنے حواریوں کو تو آپ خوش کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز غلامی کی اسی ویڈیو کا جائزہ لے کر ان کی جہالت سے انہیں آگاہ کرنے والا ہوں، تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، معاملہ شروع ہوتا ہے اس کلام سے، سنیں پہلے اس کلام کو آپ۔ نجدی حکومت کو خدا جڑ سے مٹا دے، کعبے کا امام اب کسی سنی کو بنا دے، عاشق کوئی کعبے کے مصلی پہ چڑھا دے، گستاخ نہیں ہوتا ہے کعبے میں گوارا، اس کلام سے کچھ وہابڑوں اور دیو کے بندوں کے سینے میں آگ لگ گئی ہے، اس لیے کہ فرحان برکاتی صاحب نے کلام ہی کچھ ایسا پڑھا ہے، اس نجدی حکومت کو خدا جڑ سے مٹا دے۔ یہ وہابڑے دیو کے بندے اس کلام پر کئی سارے اعتراض کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو حکومت ہے اللہ کو وہی منظور ہے، تم سنیوں کی حکومت وہاں کرنا منظور نہیں ہے اللہ کو۔ تو ان وہابڑوں دیو کے بندوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ وہابڑوں ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ وہاں پر سنیوں نے 600 سال تک حکومت کی ہے، اور اس نجدی حکومت نے ان سنیوں کو دھوکے سے مارا، قتل کیا، ان کا لاکھوں کروڑوں سنیوں کا قتل کیا اور وہاں پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد آج بھی یہ مسجد نبوی کی ہر روز توہین کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہے، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ اس وجہ سے ہم ان کو نہ اپنا امام مانتے ہیں اور نہ ہی ان کو امام کے قابل سمجھتے ہیں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو امتی ہم سمجھتے ہیں۔ گستاخ رضاخانیوں کو امامت تو دور کی بات ہے، حرمین شریفین نے ان کو مقتدی بنانا بھی پسند نہیں کیا، یہ بھی گوارا نہیں حرمین شریفین کو کہ ان جیسے گستاخ وہاں کے مقتدی بن کر وہاں کے پاکیزہ اماموں کے پیچھے نماز پڑھ سکیں۔ امتیاز دیوبھنگی صاحب، ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ سنی صحیح العقیدہ جب وہاں حکومت کرتے تھے تو کتنی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرتے تھے، مکہ المکرمہ کی اور مدینہ المنورہ کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ وہاں پر ٹرین کو بھی بند کر دیا گیا تھا کہ اس کی آواز وہاں نہیں پہنچے۔ تو سنا سامعین، آپ نے دونوں طرف کی باتیں آپ نے سن لی ہیں، لیکن اب آپ خود انصاف کر کے بتائیں کہ اب اس کا جواب دینے یہ امتیاز غلامی چلے ہیں، تو اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ان کی باتوں کو دلائل کی روشنی میں ویڈیو دکھا کر، کتابوں کے حوالے دکھا کر یا اور کسی دوسری دلیل کے ذریعے یہ ان کی کہی ہوئی باتوں کی تردید کرتے، مگر دیوبندیوں کے یہ ڈیجیٹل مفتی تو صرف نام کے مفتی ہیں بلکہ مفت کے مفتی ہیں، ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں، لہٰذا دیکھیے یہ جواب کے نام پر کیا بکے جا رہے ہیں اور کس طرح جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہے ہیں، دلیل سے ثبوت سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن پھر انشاءاللہ تعالی ان کے تبصرے کے بعد ان کو دلیل کے ساتھ کیسا جواب دیتا ہوں، آپ ضرور ملاحظہ کیجئے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، ویسے تو ایسے جاہل رضاخانیوں کے
वीडियो के जवाब में वीडियो बनाने का मुझे शौक़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन साथियों का तकाज़ा है, उनकी फरमाइश है, इसलिए मैं वीडियो का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ मुख्तसर अंदाज में। सामईन, देवबंदियों के ये डिजिटल मुफ्ती अपने कौल में अगर सच्चे होते तो हमारे चैनल पर इनकी कई सारी वीडियोज़ के रद्द में कई सारी वीडियोज़ हैं जिनका जवाब इनसे ना आज तक बना है और मुझे यकीन है नहीं कभी इनसे बन पड़ेगा। इससे मालूम हुआ कि ये जनाब सिर्फ बोलना जानते हैं और इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। मसलन आज की इस वीडियो में ही देखेंगे कि ये सिर्फ बोलेंगे, कुछ भी बोल देंगे, दलील नाम की कोई चीज़ इनके पास नहीं है। इन रज़ा ख़ानी साहब ने यह कहा है कि आज नजदियों की हुकूमत है, इससे पहले तकरीबन 600 सालों तक सुन्नियों की हुकूमत थी, वहाँ पर यह था, अमन था, सुकून था, सब कुछ था। इसमें कोई भी शक नहीं है कि अइम्मे हरमैन सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान थे, वहाँ की हुकूमत भी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों की हुकूमत थी। लेकिन याद रखें, इन रज़ा ख़ानियों के जो अक़ीदे हैं वो अक़ीदे के वो मुसलमान नहीं थे, वो वाक़ई सुन्नी सहीहुल अक़ीदा थे। वो ऐसे सुन्नी सहीहुल अक़ीदा थे कि अपनी हर हाजत का सवाल, अपनी हर ज़रूरत का सवाल एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किया करते थे। जब उन्हें औलाद मांगनी होती तो मज़ारों पर नहीं जाया करते थे, वो पीरों से नहीं मांगा करते थे। जब भी उनको इस्तिआनत की ज़रूरत पड़ती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने वो हाथ फैलाया करते थे, न कि हर वक्त अल्लाह को छोड़कर सिर्फ या गौस अल मदद का नारा लगाते थे। ऐसा नहीं करते थे। जी हाँ, यकीनन वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान थे। वो मज़ारों और दरगाहों को चरस गांजे का अड्डा बनाने वाले हरगिज़ नहीं थे। जी हाँ, वह सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान थे। इन रज़ा ख़ानियों की तरह दरगाहों पर चादर चढ़ाने वाले नहीं थे। जी हाँ, यकीनन वह सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान थे। वो दरगाहों, मज़ारों पर चादर का कारोबार नहीं करते थे, नज़र नियाज का कारोबार नहीं करते थे। उनका मकसद जेब भरना, पेट भरना हरगिज़ नहीं था। यकीनन वह सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान थे। लेकिन आजकल के रज़ा ख़ानियों का अक़ीदा उनका अक़ीदा हरगिज़ नहीं था। नहीं उस ज़माने के सुन्नी सहीहुल अक़ीदा के वो आमाल थे जो आज के रज़ा ख़ानियों के हैं, नहीं उनके वो अक़ाइद थे जो आजकल के रज़ा ख़ानियों के हैं। जनाब इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी, आप ये बताएं कि ये जो बातें आपने हम सुन्नियों से मंसूब करके की हैं, क्या उसी का नाम हमारे नज़दीक सुन्नियत है? क्या हमारे किसी आलिम ने आपके बयान करदा चीज़ों को सुन्नियत का नाम दिया है कहीं? अगर हाँ तो सबूत पेश करें, और अगर नहीं तो डरें आप अल्लाह तबारक व तआला से और बचें आप झूठ बोलकर लानती बनने से। हालांकि सच ये है कि आपने जिन बातों को हम सुन्नियों से मंसूब करके की हैं, उनके रद में हमारे उलमा के बयानात और उनकी किताबें आज भी मौजूद हैं, मगर आप हैं कि शैतानी लिबादे को ओढ़कर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की हिमाकत व जहालत करके लानती बनने पर बज़िद हैं। और रही बात आपकी इस बात की कि नजदी हुकूमत से पहले की हुकूमत जो थी उसके आमाल व अक़ीदे कैसे थे, तो आप अगर इस वीडियो को बनाने से पहले थोड़ी सी तहक़ीक़ कर लेते तो आपको आपके घर ही में आपके मौलवी का ये बयान मिल जाता। सुने कैसे ये आपके घर ही के मौलवी आपका मुंह काला कर रहे हैं और आपको झूठा साबित कर रहे हैं। बरेलवी आज़ाद कहते हैं कि इनकी हुकूमत से पहले यहाँ तुर्की हुकूमत थी तो अजान हो, तो वो तुम्हारे बरेलवी भाई थे ना, वो तो तुम्हारी बिरादरी के थे, उनका अकीदा वही था जो तुम्हारा है, वो सलाम पढ़ते होंगे। सुन लिया आपने, इससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आपकी बातें जहालत पर मबनी थी। इसके अलावा आपके घर ही की ये किताब भी देख लें, यह है फतावा दारुल उलूम देवबंद। इसकी जिल्दोम के सफ़ा नंबर 157 पर जो सवाल व जवाब है वो भी देख लें। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है उन्वान में कि अज़ान से पहले अस्सलातु वस्सलाम कहना बिदात है, हालांकि फ़तवा में ऐसा कुछ है ही नहीं। देखें क्या है, सवाल है कि अज़ान के क़ब्ल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वग़ैरह जिसको सलात कहते हैं और मक्का मदीना में होती है, ये दुरुस्त है या नहीं, ये सवाल है। एक बार और सुन लीजिए, सवाल क्या है कि अज़ान के पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वग़ैरह जिसको सलात कहते हैं और मक्का व मदीना में होती है, ये दुरुस्त है या नहीं। तो अब इसका जवाब देखिए। जवाब है इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, मतलब बिदअत लिखा भी नहीं है, मगर उन्वान में क्या दे दिया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहना क्या है, बिदअत है। देख रहे हैं सामईन, झूठ से इनकी किताबें भी खाली नहीं हैं, इनके बयानात, इनकी वीडियोस भी खाली नहीं हैं, इतने ये लोग झूठे और मक्कार होते हैं।
बहरहाल इससे भी मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा है जब अज़ान से क़ब्ल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ा जाता रहा है। लिहाजा 2 और 2 4 की तरह वाज़े हो गया कि मौजूदा नजदी हुकूमत से पहले सुन्नियों की वहाँ हुकूमत थी, जो बकौल आपके मौलवी मक्की हिजाज़ी के हमारे यानी हम सुन्नियों के हम अक़ीदा लोगों की हुकूमत थी, जिनके दौरे हुकूमत में अज़ान से क़ब्ल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा जाता रहा है, जैसा कि आपके घर की किताब से साबित हुआ। अल-मुख्तसर ये कि इम्तियाज़ पलामवी आपके पास दलील नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि कुछ भी मुंह उठाकर बोल देते हैं आप, जो आपके मौलवी और आपके घर की किताब से मरदूद हो जाता है। तो देखा सामीन आपने, इसलिए इन मक्कार देवबंदियों वहाबियों से दूर रहा करें। ये लोग बस कुछ भी मुंह उठाकर बक देते हैं और लोगों को गुमराह करने की शैतानी कोशिश करते रहते हैं। हालांकि इन देवबंदियों वहाबियों के घर में इनकी जहालतों के ख़िलाफ़ दलाइल मौजूद होते हैं, जैसा कि आपने अभी मुलाहिज़ा फरमा लिया। और सामाइन, इमाम हरम के पीछे हम सुन्नी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, इस पर यह वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। और सामाइन, हुस्न इत्तेफाक से ये वीडियो भी इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी की वीडियो के जवाब में है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लिहाजा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या वीडियो के एंड में आने वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हम सुन्नी इमाम हरम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो बस सामाइन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हैप भी कर दें, ताकि वीडियो वायरल होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच सके, और आप भी इनफरादी तौर पर अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।